Julius Caesar. Audiobooks 108. Making Shakespeare Easy and Accessible. Act 2, Scene 2, Rome. Brutus's orchard. Enter Brutus. Brutus, what, Lucius? Ho. I cannot, by the progress of the stars, give guess how near today. Lucius, I say, I would it were my fault to sleep so soundly. When, Lucius, when? Awake, I say. What? Lucius. Enter Lucius. Lucius, called you, my lord. Brutus, get me a taper in my study. Lucius, when it is lighted, come and call me here. Lucius, I will, my lord. Exit Brutus, it must be by his death, and for my part, I know no personal cause to spurn at him, but for the general. He would be crowned, how that might change his nature, there's the question. It is the bright day that brings forth the adder, and that craves weary walking. Crown him, that, and then, I grant, we put a sting in him, that at his will he may do danger with. The abuse of greatness is, when it disjoins remorse from power. And, to speak truth of Caesar, I have not known when his affection swayed more than his reason. But 'tis a common proof, that lowliness is young ambition's ladder, whereto the climber upward turns his face but when he once attains the upmost round. He then unto the ladder turns his back, looks in the clouds, scorning the base degrees by which he did ascend. So Caesar may, then, lest he make prevent. And, since the quarrel will bear no color for the thing he is, fashion it thus that what he is, augmented, would run to these and these extremities, and therefore think him as a serpent's egg which, hatchet would, as his kind, grow mischievous, and kill him in the shell. Re-enter Lucius. Lucius, the taper burneth in your closet, sir. Searching the window for a flint, I found this paper, thus sealed up, and, I am sure, it did not lie there when I went to bed. Gives him the letter. Page, -17 Brutus. Get you to bed again, it is not day. Is not tomorrow, boy, the Ides of March. Lucius, I know not, sir. Brutus, look in the calendar, and bring me word. Lucius, I will, sir. Exit Brutus, the exhalations whizzing in the air give so much light that I may read by them. Opens the letter and reads Brutus, thou sleepst, awake, and see thyself. Shall Rome, or see. Speak, strike, redress. Brutus, thou sleepst, awake. Such instigations have been often dropped where I have took them up. Shall Rome, or see. Thus must I piece it out, shall Rome stand under one man's saw? What? Rome. My ancestors did from the streets of Rome the Tarquin drive, when he was called a king. Speak, strike, redress. Am I entreated to speak and strike? O Rome, I make thee promise, if the redress will follow, thou receivest thy full petition at the hand of Brutus. Re-enter Lucius. Lucius, sir, March is wasted 14 days. Knocking within Brutus, 'tis good. Go to the gate, somebody knocks. Exit Lucius. Since Cassius first did whet me against Caesar, I have not slept. Between the acting of a dreadful thing and the first motion, all the interim is like a phantasma, or a hideous dream. The genius and the mortal instruments are then in council, and the state of man, like to a little kingdom, suffers then the nature of an insurrection. Re-enter Lucius. Lucius, sir, 'tis your brother Cassius at the door, who doth desire to see you. Page, -18. Brutus, is he alone? Lucius, no, sir, there are more with him. Brutus, do you know them? Lucius, no, sir, their hats are plucked about their ears, and half their faces buried in their cloaks, that by no means I may discover them by any mark of favor. Brutus, let them enter. Exit Lucius. They are the faction. O conspiracy, shamest thou to show thy dangerous brow by night, when evils are most free? Oh, then by day where wilt thou find a cavern dark enough to mask thy monstrous visage? Seek none, conspiracy, hide it in smiles and affability, for if thou path thy native semblance on, not Erebus itself were dim enough to hide thee from prevention. Enter the conspirators Cassius, Decius Brutus, Cinna, Metellus Cimber, and Trebonius Cassius. I think we are too bold upon your rest. Good morrow, Brutus, do we trouble you? Brutus, I have been up this hour, awake all night.
Know I these men that come along with you? Cassius. Yes, every man of them, and no man here but honors you, and every one doth wish you had but that opinion of yourself which every noble Roman bears of you. This is Trebonius. Brutus. He is welcome hither. Cassius. This, Decius Brutus. Brutus. He is welcome too. Cassius. This, Cass, this, Cinna, and this, Metellus Cimber. Brutus. They are all welcome. What watchful cares do interpose themselves betwixt your eyes and night? Page -19 Cassius. Shall I entreat a word? Brutus and Cassius whisper Decius Brutus. Here lies the east, doth not the day break here? Cass. Number. Cinna. Oh, pardon, sir, it doth, and yon grey lines that fret the clouds are messengers of day. Cass. You shall confess that you are both deceived. Here, as I point my sword, the sun arises, which is a great way growing on the south wing, the youthful season of the year. Some 2 months hence up higher toward the north he first presents his fire, and the high east stands, as the capital, directly here. Brutus, give me your hands all over, one by one. Cassius, and let us swear our resolution. Brutus. No, not an oath, if not the face of men, the sufferance of our souls, the time's abuse, if these be motives weak, break off betimes, and every man hence to his idle bed, so let high-sighted tyranny range on, till each man drop by lottery. But if these, as I am sure they do, bear fire enough to kindle cowards and to steal with valor the melting spirits of women, then, countrymen, what need we any spur but our own cause, to prick us to redress? What other bond than secret Romans, that have spoke the word, and will not palter? And what other oath than honesty to honesty engaged, that this shall be, or we will fall for it? Swear priests and cowards and men cautelous, old feeble carrions and such suffering souls that welcome wrongs, unto bad causes swear such creatures as men doubt, but do not stain the even virtue of our enterprise, nor the insuppressive metal of our spirits, to think that or our cause or our performance did need an oath, when every drop of blood that every Roman bears, and nobly bears, is guilty of a several bastardy, if he do break the smallest particle of any promise that hath passed from him. Page. B. Cassius. But what of Cicero? Shall we sound him? I think he will stand very strong with us. Cass. Let us not leave him out. Cinna. No, by no means. Metellus Cimber. Oh, let us have him, for his silver hairs will purchase us a good opinion, and by men's voices to commend our deeds, it shall be said, his judgment ruled our hands, our youths and wildness shall no whit appear, but all be buried in his gravity. Brutus. Oh, name him not, let us not break with him, for he will never follow anything that other men begin. Cassius. Then leave him out. Cass. Indeed he is not fit. Decius Brutus. Shall no man else be touched but only Caesar? Cassius. Decius. Well urged, I think it is not meet. Mark Antony, so well beloved of Caesar, should outlive Caesar. We shall find of him a shrewd contriver, and, you know, his means, if he improve them, may well stretch so far as to annoy us all, which to prevent, let Antony and Caesar fall together. Brutus. Our course will seem too bloody, Quis Cassius, to cut the head off and then hack the limbs, like wrath in death and envy afterwards, for Antony is but a limb of Caesar. Let us be sacrifices, but not butchers, Quis. We all stand up against the spirit of Caesar, and in the spirit of men there is no blood. Oh, that we then could come by Caesar's spirit, and not dismember Caesar. But, alas, Caesar must bleed for it. And, gentle friends, let's kill him boldly, but not wrathfully. Let's carve him as a dish fit for the gods, not hew him as a carcass fit for hounds, and let our hearts, as subtle masters do, stir up their servants to an act of rage, and after seem to chide. M. This shall make our purpose necessary and not envious, which so appearing to the common eyes, we shall be called purgers, not murderers. And for Mark Antony, think not of him, for he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. Page 21 Cassius. Yet I fear him, for in the ingrafted love he bears to Caesar Brutus,
Alas, good Cassius, do not think of him. If he loves Caesar, all that he can do is to himself take thought and die for Caesar, and that were much he should, for he is given to sports, to wildness, and much company. Trebonius, there is no fear in him. Let him not die, for he will live, and laugh at this hereafter. Clock strikes Brutus. Peace. Count the clock. Cassius, the clock hath stricken 3. Trebonius, 'tis time to part. Cassius, but it is doubtful yet, whether Caesar will come forth today, or no, for he is superstitious grown of late, quite from the mere opinion he held once of fantasy, of dreams and ceremonies. It may be, these apparent prodigies, the unaccustomed terror of this night, and the persuasion of his augurers, may hold him from the capital today. Decius Brutus, never fear that, if he be so resolved, I can overquay him, for he loves to hear that unicorns may be betrayed with trees, and bears with glasses, elephants with holes, lions with toils, and men with flatterers. But when I tell him he hates flatterers, he says he does, being then most flattered. Let me work, for I can give his humor the true bent, and I will bring him to the capital. Cassius, nay, we will all of us be there to fetch him. Brutus, by the 8th hour, is that the uttermost? Cinna, be that the uttermost, and fail not then. Page 22. Metellus Cimber, Quis Ligurius doth bear Caesar hard, who rated him for speaking well of Pompey. I wonder none of you have thought of him. Brutus, now, good Metellus, go along by him. He loves me well, and I have given him reasons. Send him but hither, and I'll fashion him. Cassius, the morning comes upon us, we'll leave you, Brutus. And, friends, disperse yourselves, but all remember what you have said, and show yourselves true Romans. Brutus, good gentlemen, look fresh and merrily, let not our looks put on our purposes, but bear it as our Roman actors do, with untired spirits and formal constancy, and so good morrow to you every one. Exeunt all but Brutus. Boy, Lucius, fast asleep. It is no matter, enjoy the honey-heavy dew of slumber. Thou hast no figures nor no fantasies, which busy care draws in the brains of men, therefore thou sleepst so sound. Enter Portia. Portia, Brutus, my lord. Brutus, Portia, what mean you? Wherefore rise you now? It is not for your health thus to commit your weak condition to the raw cold morning. Portia, nor for yours neither. You ungently, Brutus, stole from my bed, and yesternight, at supper, you suddenly arose, and walked about, musing and sighing, with your arms across, and when I asked you what the matter was, you stared upon me with ungentle looks. I urged you further, then you scratched your head, and too impotently stamped with your foot. Yet I insisted, yet you answered not, but, with an angry wafter of your hand, gave sign for me to leave you. So I did, fearing to strengthen that impatience which seemed too much enkindled. And withal hoping it was but an effect of humor, which sometime hath his hour with every man. It will not let you eat, nor talk, nor sleep, and could it work so much upon your shape as it hath much prevailed on your condition, I should not know you, Brutus. Dear my lord, make me acquainted with your cause of grief. Page Chobis. Brutus, I am not well in health, and that is all. Portia, Brutus is wise, and, were he not in health, he would embrace the means to come by it. Brutus, why, so I do. Good Portia, go to bed. Portia, is Brutus sick? And is it physical to walk unbraced and suck up the humors of the dank morning? What? Is Brutus sick, and will he steal out of his wholesome bed, to durry the vile contagion of the night and tempt the roomy and unpurged air to add unto his sickness? No, my Brutus, you have some sick offense within your mind, which, by the right and virtue of my place, I ought to know of. And, upon my knees, I charm you, by my once commended beauty, by all your vows of love and that great vow which did incorporate and make us one, that you unfold to me, yourself, your half, while you are heavy, and what men tonight have had to resort to you. For here have been some 6 or 7, who did hide their faces even from darkness. Brutus, kneel not, gentle Portia. Portia, I should not need, if you would, gentle Brutus. Within the bond of marriage, tell me, Brutus, is it accepted I should know no secrets that appertain to you?
Am I yourself, but, as it were, in sort or limitation, to keep with you at meals, comfort your bed, and talk to you sometimes? Dwell I but in the suburbs of your good pleasure. If it be no more, Portia is Brutus, harlot, not his wife. Brutus, you are my true and honorable wife, as dear to me as are the ruddy drops that visit my sad heart page, minus Chobbies. Portia, if this were true, then should I know this secret. I grant I am a woman, but withal a woman that Lord Brutus took to wife. I grant I am a woman, but withal a woman well reputed, Cato's daughter. Think you I am no stronger than my sex, being so fathered and so husbanded? Tell me your counsels, I will not disclose. I have made strong proof of my constancy, giving myself a voluntary wound here, in the thigh. Can I bear that with patience? And not my husband's secrets. Brutus, O ye gods, render me worthy of this noble wife. Knocking within, hark, hark. One knocks, Portia, go in a while, and by thy bosom shall partake the secrets of my heart. All my engagements I will construe to thee, all the chiractery of my sad brows, leave me with haste. Exit Portia. Lucius, who's that knocks? Re-enter Lucius with Ligarius. Lucius, he is a sick man that would speak with you. Brutus, keys Ligarius, that Metellus spake of. Boy, stand aside. Keys Ligarius. How? Ligarius, vouchsafe good morrow from a feeble tongue. Brutus, oh, what a time have you chose out, brave keys, to wear a kerchief. Would you were not sick. Ligarius, I am not sick, if Brutus have in hand any exploit worthy the name of honor. Brutus, such an exploit have I in hand. Ligarius, had you a healthful ear to hear of it. Ligarius, by all the gods that Romans bow before, I hear discard my sickness. Soul of Rome, brave son, derived from honorable loins. Thou, like an exorcist, hast conjured up my mortified spirit. Now bid me run, and I will strive with things impossible, yea, get the better of them. What's to do? Brutus, a piece of work that will make sick men whole. Ligarius, but are not some whole that we must make sick. Page, Pachis. Brutus, that must we also. What it as, my keys, I shall unfold to thee, as we are going to whom it must be done. Ligarius, set on your foot, and with a heart new fired I follow you, to do I know not what, but it sufficed that Brutus leads me on. Brutus, follow me, then. Exeunt Scene 2. Caesar's house. Thunder and lightning. Enter Caesar, in his night gown. Caesar, nor heaven nor earth have been at peace tonight. Thrice hath Calpurnia in her sleep cried out, help, ho! They murder Caesar. Who's within? Enter a servant, my lord. Caesar, go bid the priests to present sacrifice and bring me their opinions of success. Servant, I will, my lord. Exit. Enter Calpurnia. Calpurnia, what mean you, Caesar? Think you to walk forth? You shall not stir out of your house today. Caesar shall forth. The things that threatened me ne'er looked but on my back. When they shall see the face of Caesar, they are vanished. Calpurnia, Caesar, I never stood on ceremonies, yet now they fright me. There is one within, besides the things that we have heard and seen, recounts most horrid sights seen by the watch. A lioness hath dwelt in the streets, and graves have yawned, and yielded up their dead. Fierce fiery warriors fought upon the clouds, in ranks and squadrons and right form of war, which drizzled blood upon the Capitol. The noise of battle hurtled in the air, horses did neigh, and dying men did groan, and ghosts did shriek and squeal about the streets. O Caesar, these things are beyond all use, and I do fear them. Page, -26 Caesar, what can be avoided whose end is purposed by the mighty gods? Yet Caesar shall go forth, for these predictions are to the world in general as to Caesar. Calpurnia, when beggars die, there are no comets seen, the heavens themselves blaze forth the death of princes. Caesar, cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that men should fear, seeing that death, a necessary end, will come when it will come.
Re-enter servant. What say the augurers? Servant, they would not have you to stir forth today. Plucking the entrails of an offering forth, they could not find a heart within the beast. Caesar, the gods do this in shame of cowardice. Caesar should be a beast without a heart, if he should stay at home today for fear. No, Caesar shall not. Danger knows full well that Caesar is more dangerous than he. We are two lions littered in one day, and I the elder and more terrible, and Caesar shall go forth. Calpurnia, alas, my lord, your wisdom is consumed in confidence. Do not go forth today, call it my fear that keeps you in the house, and not your own. We'll send Mark Antony to the Senate house, and he shall say you are not well today. Let me, upon my knee, prevail in this. Caesar, Mark Antony shall say I am not well, and, for thy humor, I will stay at home. Enter Decius Brutus. Here's Decius Brutus, he shall tell them so. Decius Brutus, Caesar, all hail. Good morrow, worthy Caesar, I come to fetch you to the Senate house. Caesar, and you are come in very happy time, to bear my greeting to the senators and tell them that I will not come today. Cannot, is false, and that I dare not, falser. I will not come today. Tell them so, Decius. Page 27. Calpurnia, say he is sick. Caesar, shall Caesar send a lie? Have I in conquest stretched mine arm so far, to be afraid to tell greybeards the truth? Decius, go tell them Caesar will not come. Decius Brutus, most mighty Caesar, let me know some cause, lest I be laughed at when I tell them so. Caesar, the cause is in my will. I will not come, that is enough to satisfy the Senate. But for your private satisfaction, because I love you, I will let you know. Calpurnia here, my wife, stays me at home. She dreamt tonight she saw my statue, which, like a fountain with 100 spouts, did run pure blood, and many lusty Romans came smiling, and did bathe their hands in it, and these does she apply for warnings, and portents, and evils imminent, and on her knee hath begged that I will stay at home today. Decius Brutus, this dream is all misinterpreted, it was a vision fair and fortunate. Your statue spouting blood in many pipes, in which so many smiling Romans bathed, signifies that from your great Rome shall suck reviving blood, and that great men shall press for tinctures, stains, relics and cognizance. This by Calpurnia's dream is signified. Caesar, and this way have you well expounded it. Decius Brutus, I have, when you have heard what I can say, and know it now, the Senate have concluded to give this day a crown to mighty Caesar. If you shall send them word you will not come, their minds may change. Besides, it were a mock apt to be rendered, for someone to say break up the Senate till another time, when Caesar's wife shall meet with better dreams. If Caesar hide himself, shall they not whisper low, Caesar is afraid? Pardon me, Caesar, for my dear, dear love to our proceeding bids me tell you this, and reason to my love is liable. Page -28. Caesar, how foolish do your fears seem now, Calpurnia. I am ashamed I did yield to them. Give me my robe, for I will go. Enter Publius, Brutus, Ligerus, Metellus, Cast, Trebonius, and Cinna, and look where Publius is come to fetch me. Publius, good morrow, Caesar. Caesar, welcome, Publius. What, Brutus, are you stirred so early too? Good morrow, Cass. Quis Ligarius, Caesar was ne'er so much your enemy as that same ague which hath made you lean. What is 'o'clock? Brutus, Caesar, 'tis struck an 8. Caesar, I thank you for your pains and courtesy. Enter Antony C. Antony, that revels long o' nights, is notwithstanding up. Good morrow, Antony. Antony, so too most noble Caesar. Caesar, bid them prepare within, I am too blamed to be thus waited for. Now, Cinna, now, Metellus, what, Trebonius? I have an hour's talk in store for you. Remember that your call on me today. Be near me, that I may remember you. Trebonius Caesar, I will, aside and so near will I be, that your best friends shall wish I had been further. Caesar, good friends, go in, and taste some wine with me, and we, like friends, will straightway go together.
Brutus, aside that every like is not the same, O Caesar, the heart of Brutus yearns to think upon. Exeunt page 29. Scene -3. A street near the Capitol. Enter Artemidorus, reading a paper. Artemidorus, Caesar, beware of Brutus, take heed of Cassius, come not near Cass, have an eye to Cinna, trust not Trebonius, mark well Metellus Cimber, Decius Brutus loves thee not, thou hast wronged Caius Ligarius. There is but one mind in all these men, and it is bent against Caesar. If thou beest not immortal, look about you, security gives way to conspiracy. The mighty gods defend thee. Thy lover, Artemidorus. Here will I stand till Caesar pass along, and as a suitor will I give him this. My heart laments that virtue cannot live out of the teeth of emulation. If thou read thus, O Caesar, thou mayst live, if not, the fates with traitors do contrive. Exit scene 4. Another part of the same street, before the house of Brutus. Enter Portia and Lucius. Portia, I prithee, boy, run to the Senate house, stay not to answer me, but get thee gone, why dost thou stay? Lucius, to know my errand, madam. Portia, I would have had thee there, and here again, ere I can tell thee what thou shouldst do there. O Constancy, be strong upon my side, set a huge mountain tween my heart and tongue. I have a man's mind, but a woman's might. How hard it is for women to keep counsel. Art thou here yet? Lucius, madam, what should I do? Run to the Capitol, and nothing else. And so return to you, and nothing else. Portia, yes, bring me word, boy, if thy lord look well, for he went sickly forth, and take good note what Caesar doth, what suitors press to him. Hark, boy, what noise is that? Lucius, I hear none, madam. Portia, prithee, listen well, I heard a bustling rumor, like a fray, and the wind brings it from the Capitol. Lucius, sooth, madam, I hear nothing. Enter the soothsayer. Page 30. Portia, come hither, fellow, which way hast thou been? Soothsayer, at mine own house, good lady. Portia, what ist o'clock? Soothsayer, about the 9th hour, lady. Portia, is Caesar yet gone to the Capitol? Soothsayer, madam, not yet, I go to take my stand, to see him pass on to the Capitol. Portia, thou hast some suit to Caesar, hast thou not? Soothsayer, that I have, lady, if it will please Caesar to be so good to Caesar as to hear me, I shall beseech him to befriend himself. Portia, why, knowst thou any harms intended towards him? Soothsayer, none that I know will be, much that I fear may chance. Good morrow to you. Here the street is narrow, the throng that follows Caesar at the heels, of senators, of praetors, common suitors, will crowd a feeble man almost to death. I'll get me to a place more void, and there speak to great Caesar as he comes along. Exit Portia, I must go in. Ay me, how weak a thing the heart of woman is. O Brutus, the heavens speed thee in thine enterprise. Sure, the boy heard me, Brutus hath a suit that Caesar will not grant. Oh, I grow faint. Run, Lucius, and commend me to my lord, say I am merry, come to me again, and bring me word what he doth say to thee. Exeunt severally. For more updates like this, please subscribe our channel Audiobooks 108 and enable notifications. Thanks. अधिनियम -2 दृश्य -2 रोम। ब्रूट्स का बाग। ब्रूट्स दर्ज करें। ब्रूट्स क्या? लूसियस, हो। मैं सितारों की प्रगति से नहीं कर सकता अंदाजा लगाए कि दिन कितना करीब है। लूसियस, मैं कहता हूँ, काश इतनी गहरी नींद सोना मेरी गलती होती। कब? लूसियस, कब? जागो। मैं कहता हूँ, क्या? लूसियस। लूसियस दर्ज करें। लूसियस, हे प्रभु, तुम्हें बुलाया। ब्रूट्स, मेरे अध्ययन में एक टेपर लाओ। लूसियस, जब उजाला हो जाए तो आकर मुझे यहाँ बुला लेना। लूसियस, मैं करूँगा, मेरे प्रभु। बाहर निकलना ब्रूट्स, यह उसकी मृत्यु से होना चाहिए, और मेरी ओर से, मैं उसे अस्वीकार करने का कोई व्यक्तिगत कारण नहीं जानता, लेकिन जनरल के लिए उसे ताज पहनाया जाएगा। यह उसके स्वभाव को कैसे बदल सकता है? ये सवाल है। ये वह उज्जवल दिन है जो योजक को सामने लाता है,
और वह सावधान होकर चलने की इच्छा रखता है। उसे ताज पहनाओ, वह, और फिर मैं मानता हूँ हमने उसमें एक डंक डाल दिया कि वह अपनी मर्जी से किसी भी तरह का खतरा मोल ले सकता है। महानता का दुरुपयोग तब होता है जब वह विच्छेद करती है सत्ता से पछतावा। और सीज़र के बारे में सच बोलने के लिए, मुझे नहीं पता कि उसका स्नेह कब प्रभावित हुआ उसके कारण से भी अधिक। लेकिन यह एक सामान्य प्रमाण है, वह दीनता युवा महत्वाकांक्षा की सीढ़ी है जिस ओर पर्वतारोही अपना मुख ऊपर की ओर कर लेता है। लेकिन जब वह एक बार सर्वोच्च दौर को प्राप्त कर लेता है, फिर वह सीढ़ी की ओर पीठ कर लेता है, बादलों में देखता है, आधार डिग्री का तिरस्कार करता है जिससे वह चढ़ गया। तो सीज़र हो सकता है। फिर ऐसा न हो कि वह रोके और झगड़े के बाद से वह जो है उसके लिए कोई रंग नहीं धारण करेगा। इसे इस प्रकार फैशन करें कि वह क्या है, संवर्धित इन और इन छोरों तक दौड़ेंगे, और इसलिए उसे सांप का अंडा समझो जो पैदा हुआ अपनी तरह का शरारती हो जाएगा और उसे खोल में मार डालो। लूसियस को पुनः दर्ज करें। लूसियस, टेपर आपकी अलमारी में जल रहा है, सर। खिड़की पर चकमक पत्थर ढूंढने पर मुझे एक चकमक पत्थर मिला। इस प्रकार यह कागज सील कर दिया गया, और मुझे यकीन है जब मैं बिस्तर पर गया तो यह वहां नहीं पड़ा था। उसे पत्र देता है। पेज -17 ब्रूट्स, तुम्हें फिर से बिस्तर पर ले आओ, ये दिन नहीं है। क्या कल, लड़के, मार्च का दिन नहीं है? लूसियस, मैं नहीं जानता, सर। ब्रूट्स, कैलेंडर में देखो और मुझे खबर दो। लूसियस, मैं करूंगा, सर। बाहर निकलना ब्रूट्स, सांसें हवा में घरघराती हुई इतनी रोशनी दो कि मैं उनसे पढ़ सकूं। पत्र खोलकर पढ़ता है ब्रूट्स, तुम सो रहे हो, जागो और अपने आप को देखो। शाल रोम और सी, बोलो, प्रहार करो, निवारण करो। ब्रूट्स, तुम सो रहे हो, जागो। इस तरह के उकसावे अक्सर छोड़े जाते रहे हैं जहां मैंने उन्हें उठाया है। क्या रोम और सी? इस प्रकार मुझे इसे अलग करना होगा। क्या रोम एक आदमी के खौफ के नीचे खड़ा रहेगा? क्या रोम? मेरे पूर्वजों ने रोम की सड़कों से किया था टारक्विन ड्राइव, जब उसे राजा कहा जाता था। बोलो, प्रहार करो, निवारण करो। क्या मैंने विनती की? बोलना और प्रहार करना। हे रोम, मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि निवारण अनुसरण करेगा तो तुम्हें प्राप्त होगा ब्रूट्स के हाथ में आपकी पूरी याचिका। लूसियस को पुनः दर्ज करें। लूसियस, सर, मार्च के 14 दिन बर्बाद हो गए। भीतर दस्तक दे रहा है ब्रूट्स, यह अच्छा है। गेट पर जाओ, कोई दस्तक देता है। लूसियस से बाहर निकलें। चूंकि कैसियस ने सबसे पहले मुझे सीज़र के विरुद्ध भड़काया था, मैं सोया नहीं। किसी खौफनाक चीज की एक्टिंग के बीच और पहला प्रस्ताव सब अंतरिम है, एक भ्रम या एक भयानक सपने की तरह। प्रतिभा और नश्वर उपकरण फिर परिषद में है, और मनुष्य की स्थिति एक छोटे से राज्य की तरह तब भुगतना पड़ता है विद्रोह की प्रकृति। लूसियस को पुनः दर्ज करें। लूसियस, सर, आपका भाई कैसियस दरवाजे पर है, तुम्हें देखने की इच्छा किसको है? पेज -18 ब्रूट्स, क्या वह अकेला है? लूसियस, नहीं सर, उसके साथ मो भी हैं। ब्रूट्स, क्या आप उन्हें जानते हैं? लूसियस, नहीं साहब, उनकी टोपियां उनके कानों से खींची गई हैं, और उनके आधे चेहरे उनके लबादों में दबे हुए थे कि किसी भी तरह मैं उन्हें ढूंढ न सकूं एहसान के किसी भी निशान से। ब्रूट्स, उन्हें प्रवेश करने दो। लूसियस से बाहर निकलें, वे गुट हैं। हे षड्यंत्र, तुम्हें रात में अपनी खतरनाक भौं दिखाने में शर्म आती है। बुराइयां सबसे अधिक मुक्त कब होती हैं? ओह, फिर दिन तक तुम्हें इतनी अंधेरी गुफा कहाँ मिलेगी? अपनी राक्षसी छवि को छुपाने के लिए किसी की तलाश मत करो। षड्यंत्र, इसे मुस्कुराहट और मिलनसारिता में छुपाएं, क्योंकि यदि तू मार्ग पर चले तो तेरा मूल स्वरूप अरेबसी काफी मंद नहीं थे तुम्हें रोकथाम से छिपाने के लिए। षड्यंत्रकारियों कैसियस कैस्का डेसियस को दर्ज करे। ब्रूट्स, सिन्ना, मेटिलस सिम्बर और ट्रेबोनियस कैसियस, मुझे लगता है कि हम आपके आराम को लेकर बहुत निर्भीक हैं। शुभ दुख। ब्रूट्स, क्या हम तुम्हें परेशान करते हैं? ब्रूट्स, मैं इस घंटे तक जागता रहा हूँ, सारी रात जागता रहा हूँ। क्या मैं उन लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारे साथ आते हैं?
कैसियस, हाँ, उनमें से हर आदमी, और यहाँ कोई आदमी नहीं परंतु तुम्हारा आदर करता है, और हर कोई चाहता है आपके पास अपने बारे में यही राय थी जिसे हर महान रोमन आपसे सहन करता है। ये ट्रेबोनियस है। ब्रूट्स, उनका यहाँ स्वागत है। कैसियस, ये डेसियस ब्रूट्स। ब्रूट्स, उनका भी स्वागत है। कैसियस, ये कास्का, ये सिन्ना और ये मेटिलस सिम्बर। ब्रूट्स, उन सभी का स्वागत है। कौन सी सतर्क चिंताएं स्वयं हस्तक्षेप करती हैं अपनी आंखों और रात के बीच। पेज -19 कैसियस, क्या मैं एक शब्द विनती करूं? ब्रूट्स और कैसियस फुसफुसाते हैं। डेसियस, ब्रूट्स, यहाँ पूर्व है, क्या यहाँ दिन नहीं निकलता? कास्का, नहीं। सिन्ना, हे क्षमा करें श्रीमान, ऐसा होता है। और योन ग्रे लाइनें व झल्लाहट बादल दिन के दूत हैं। कास्का, तुम स्वीकार करोगे कि तुम दोनों को धोखा दिया गया है। यहाँ जैसे ही मैं अपनी तलवार उठाता हूँ, सूरज उगाता है, जो दक्षिण में बढ़ने का एक शानदार तरीका है। वर्ष के युवा मौसम का वजन। अब से लगभग 2 महीने बाद उत्तर की ओर ऊंचे स्थान पर वह पहले अपनी अग्नि प्रस्तुत करता है और उच्च पूर्व कैपिटल के रूप में सीधे यहीं खड़ा है। ब्रूट्स, एक एक करके मुझे अपना हाथ दो। कैसियस, और आइए हम अपने संकल्प की शपथ लें। ब्रूट्स, नहीं, शपथ नहीं। यदि मनुष्यों का चेहरा नहीं, हमारी आत्मा की पीड़ा, समय का दुरुपयोग, अगर ये इरादे कमजोर हों, तो कभी कभी टूट जाना, और हर एक पुरुष अपने खाली बिस्तर पर सो गया, तो दूरदर्शी अत्याचार को बढ़ने दो, जब तक प्रत्येक व्यक्ति लॉटरी से न छूट जाए। लेकिन अगर ये, जैसा कि मुझे यकीन है कि वे ऐसा करते हैं, पर्याप्त आग सहन करते हैं कायरों को प्रज्वलित करना और वीरता से फौलाद बनाना, महिलाओं का पिघलता हौसला, फिर देशवासियों, हमें अपने स्वयं के कारण के अलावा किसी प्रेरणा की क्या आवश्यकता है? निवारण हेतु हमें चुभाना। और क्या बंधन गुप्त रोमियो से भी, जिन्होंने वचन बोला है, और थपथपाओगे नहीं? और क्या कसम ईमानदारी से जुड़े कि यही होगा, या हम इसके झांसे में आ जाएंगे? याजकों और कायरों और सतर्क मनुष्यों की शपथ खाओ। बुरे कमजोर मुर्दे और ऐसी पीड़ित आत्माएं वह गलतियों का स्वागत करता है। बुरे कारणों के लिए कसम खाता हूँ। मनुष्य जैसे प्राणी संदेह करते हैं, लेकिन दाग मत लगाओ हमारे उद्यम का भी गुण, नहीं हमारी आत्माओं की दमनकारी शक्ति। ऐसा सोचना या हमारा उद्देश्य या हमारा प्रदर्शन शपथ की जरूरत थी, जब खून की हर बूंद जिसे हर रोमन सहन करता है और कुलीनता से सहन करता है, कई कमीनों का दोषी है, यदि वह छोटे से छोटे कण को भी तोड़ देता है किसी भी वादे का जो उससे हुआ हो। पेज 20 कैसियस, लेकिन सिसरो का क्या हम उसे आवाज देंगे? मुझे लगता है कि वह हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़े रहेंगे। कैस्का, आइए हम उसे बाहर न छोड़ें। सिन्ना, नहीं, कदापि नहीं। मेटिलस सिम्बर, ओह, आइए हम उसे अपने चांदी के बालों के लिए पाल लें। हमें एक अच्छी राय खरीदेंगे और हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए पुरुषों की आवाज खरीदें। ये कहा जाएगा, उसके निर्णय ने हमारे हाथों पर शासन किया। हमारी जवानी और जंगलीपन कभी भी प्रकट नहीं होंगे, लेकिन सभी उसके गुरुत्वाकर्षण में दबे रहेंगे। ब्रूट्स, हे, उसका नाम मत लो, हम उससे नाता न तोड़ें, क्योंकि वह कभी किसी चीज का अनुसरण नहीं करेगा। वह दूसरे पुरुष शुरू करते हैं। कैसियस, फिर उसे बाहर छोड़ दो। कास्का, दरअसल वह फिट नहीं है। डेसियस, ब्रूट्स, क्या केवल सीजर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श नहीं किया जाएगा? कैसियस, डेसियस, अच्छा आग्रह, मुझे लगता है कि यह पूरा नहीं हुआ है। मार्क एंटनी, सीजर का बहुत प्रिय, सीजर से जीवित रहना चाहिए। हम उसका पता लगा लेंगे, एक चतुर आविष्कारक, और आप जानते हैं उसका मतलब, यदि वह उनमें सुधार कर ले तो बहुत आगे तक जा सकता है। हम सभी को परेशान करने के लिए जिसे रोका जाए। एंटनी और सीजर को एक साथ गिरने दो। ब्रूट्स, हमारा मार्ग बहुत खूनी लगेगा। कैसियस, काटने के लिए सिर काट दो और फिर हाथ पैर काट डालो, जैसे मृत्यु में क्रोध और उसके बाद ईर्ष्या, क्योंकि एंटनी सीजर का एक अंग मात्र है। आइए हम बलिदानी बने, लेकिन कसाई नहीं। कैस, हम सभी सीजर की भावना के विरुद्ध खड़े हैं, और मनुष्यों की आत्मा में खून नहीं है। ओह,
कि हम तब सीज़र की आत्मा के द्वारा आ सके, और सीज़र को टुकड़े टुकड़े मत करो। लेकिन अफसोस, सीज़र को इसके लिए खून बहाना होगा। और सज्जन मित्रों, आइए हम उसे साहपूर्वक मारें, परंतु क्रोधपूर्वक नहीं। आइए हम उसे देवताओं के लिए उपयुक्त व्यंजन के रूप में तराशें। उसे शिकारी कुत्तों के लायक शव के रूप में नहीं काटा गया। और हमारे हृदय, जैसे सूक्ष्म स्वामी करते हैं, अपने सेवकों को क्रोधित करने के लिए उकसाओ, और उसके बाद उन्हें डांटने लगते हैं। ये बनेगा हमारा उद्देश्य आवश्यक है, न कि ईर्ष्यालु, जो आम आंखों को ऐसा प्रतीत होता है। हम शुद्ध करने वाले कहलाएंगे, हत्यारे नहीं। और मार्क एंटनी के बारे में मत सोचो, क्योंकि वह सीज़र की भुजा से अधिक कुछ नहीं कर सकता जब सीज़र का सिर काट दिया गया। पेज -21 कैसियस, तो भी मैं उससे डरता हूँ, क्योंकि वह सीज़र से प्रेम रखता है। ब्रूट्स, अफसोस, अच्छे कैसियस, उसके बारे में मत सोचो। यदि वह सीज़र से प्रेम करता है, तो वह सब कुछ कर सकता है। अपने बारे में सोचो और सीज़र के लिए मरो। और वह बहुत कुछ था जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि वह दिया गया है खेलकूद से, जंगलीपन से और अधिक संगति से। ट्रेबोनियस, उसमें कोई डर नहीं है। वह मर न जाए, क्योंकि वह जीवित रहेगा और इस पर हंसता रहेगा। घड़ी चल रही है ब्रूट्स, शांति। घड़ी गिने। कैसियस, घड़ी ने 3 को मारा है। ट्रेबोनियस, यह अलग होने का समय है। कैसियस, लेकिन यह अभी भी संदिग्ध है। सीज़र आज सामने आएगा या नहीं, क्योंकि वह हाल ही में अंधविश्वासी हो गया है। उस मुख्य राय से बिल्कुल अलग जो उन्होंने एक बार रखी थी, कल्पना की, सपनों और समारोहों की। हो सकता है ये स्पष्ट प्रतिभाएं, इस रात का असामान्य आतंक और उसके शुभ चिंतकों का अनुनय, हो सकता है कि वह आज उसे कैपिटल से पकड़ ले। डेसियस ब्रूट्स, उससे कभी मत डरो। अगर वह इतना दृढ़ निश्चयी हो, मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उसे सुनना अच्छा लगता है कि एक सिंगों को पेड़ों के साथ धोखा दिया जा सकता है, और चश्मे वाले भालू, छेद वाले हाथी, मेहनती शेर और चापलूस आदमी। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि उसे चापलूसों से नफरत है, तब वह सबसे अधिक प्रसन्न होकर कहता है कि वह ऐसा करता है। मुझे काम करने दो, क्योंकि मैं उसके हास्य को असली रूप दे सकता हूँ, और मैं उसे कैपिटल में लाऊंगा। कैसियस, नहीं, हम सब उसे लाने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। ब्रूट्स, 8वें घंटे तक, क्या वह चरम है? सिन्ना, वो परम बनो, और तब असफल मत हो। पेज -22 मेटिलस सिम्बर, गयस लेग्रियस ने सीज़र को कड़ी मेहनत से सहन किया। पोम्पी के बारे में अच्छा बोलने के लिए उन्हें किसने रेटिंग दी? मुझे आश्चर्य है कि आप में से किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा। ब्रूट्स, अब अच्छे मेटिलस, उसके साथ चलो। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैंने उसे कारण बताए हैं। उसे यहाँ भेजो, और मैं उसे तैयार करूँगा। कैसियस, सुबह होती है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ब्रूट्स, और मित्रों, अपने आप को तितर बितर कर लो, लेकिन सभी को याद है आपने जो कहा है, और अपने आप को सच्चे रोमन दिखाएं। ब्रूट्स, अच्छे सज्जनों, तरोताजा और प्रसन्न दिखें। हमारी दृष्टि हमारे उद्देश्यों पर न पड़े, लेकिन इसे वैसे ही सहन करो जैसे हमारे रोमन अभिनेता करते हैं, अथक उत्साह और औपचारिक दृढ़ता के साथ। और आप सभी को कल की शुभकामनाएं। ब्रूट्स को छोड़कर सभी को निर्वासित करें। लड़का, लुसियस, घोड़े बेचकर सोना, यह कोई बात नहीं है। नींद की शहद जैसी भारी ओस का आनंद लें। आपके पास कोई आकृतियां नहीं है और न ही कोई कल्पनाएं हैं। कौन सी व्यस्त देखभाल पुरुषों के दिमाग में खींचती है, इसलिए तुम्हें गहरी नींद आती है। पोटिया दर्ज करें। पोटिया, ब्रूट्स, मेरे स्वामी। ब्रूट्स, पोटिया, आपका क्या मतलब है? अब तुम क्यों उठे? इस प्रकार प्रतिबद्ध होना आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं है। कच्ची ठंडी सुबह तक आपकी कमजोर हालत। पोटिया, नहीं आपके लिए। तुमने लापरवाही बरती है। ब्रूट्स, मेरे बिस्तर से चोरी की, और कल रात के खाने के समय तुम अचानक उठे और चलने लगे, अपनी बाहों को फैलाकर, सोचते हुए और आह भरते हुए। और जब मैंने तुमसे पूछा कि मामला क्या था, तुमने मुझे भद्दी निगाहों से देखा। मैंने आपसे और भी आग्रह किया, फिर तुमने अपना सिर खुजाया और बहुत अधीरता से अपने पैर से मुहर लगाई। फिर भी मैंने जोर दिया, फिर भी तुमने उत्तर नहीं दिया, लेकिन अपने गुस्से भरे हाथ से मुझे संकेत दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने वैसा ही किया।
उस अधीरता को और मजबूत करने का डर है जो बहुत ज्यादा भड़काया हुआ और खत्म करने वाला प्रतीत होता है। आशा है कि यह केवल हास्य का प्रभाव था, जो कभी न कभी हर आदमी के साथ उसका समय होता है। ये तुम्हें न खाने देगा, न बात करने देगा, न सोने देगा, और क्या यह आपके आकार पर इतना काम कर सकता है चूंकि इसका आपकी स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा है। मुझे तुम्हें नहीं जानना चाहिए, ब्रूट्स। प्रिय मेरे स्वामी, मुझे अपने दुख के कारण से परिचित कराओ। पेज -24। ब्रूट्स, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बस इतना ही। पोर्टिया, ब्रूट्स बुद्धिमान है, और यदि वह स्वस्थ नहीं होता, वह इसके द्वारा आने वाले साधनों को अपनाएगा। ब्रूट्स, क्यों? मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा पोर्टिया, सो जाओ। पोर्टिया, क्या ब्रूट्स बीमार है? और क्या ये शारीरिक है? बिना ब्रेजेस के चलना और हास्य को आत्मसात करना नम सुबह का। क्या ब्रूट्स बीमार है? और क्या वह उसके स्वस्थ बिस्तर से चोरी करेगा, रात की विभत्स छूत का साहस करने के लिए और रूमी और अशुद्ध वायु को ललचाओ उसकी बीमारी को बढ़ाने के लिए? नहीं मेरे ब्रूट्स, तुम्हारे मन में कोई कुत्सित अपराध है जो मेरे स्थान के अधिकार और गुण से मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। और अपने घुटनों पर मैं तुम्हें अपनी एक बार प्रशंसित सुंदरता से आकर्षित करता हूँ, आपके प्रेम की सभी प्रतिज्ञाओं और उस महान व्रत के द्वारा जिसने हमें शामिल किया और एक बनाया, जो तुम मेरे सामने प्रकट करते हो अपने आप को, अपने आधे को। तुम क्यों भारी हो? और क्या पुरुष आज रात आपको सहारा लेना पड़ा है? यहाँ के लिए किया गया है कुछ 6 या 7 जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया अंधेरे से भी। ब्रूट्स, घुटने मत टेको, सौम्य पोर्टिया। पोर्टिया, यदि तुम कोमल ब्रूट्स होते तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती। विवाह के बंधन में मुझे बताओ ब्रूट्स, क्या यह अपवाद है कि मुझे कोई रहस्य नहीं जानना चाहिए? वह आपसे संबंधित है। क्या मैं आप ही हूँ? लेकिन जैसा कि यह था, प्रकार या सीमा में भोजन के समय अपने साथ रखने के लिए, अपने बिस्तर को आरामदायक बनाने के लिए, और कभी कभी आपसे बात होती है। मैं उपनगरों में रहता हूँ आपकी अच्छी खुशी का। यदि यह अब और न हो, पोर्टिया ब्रूट्स की वेश्या है, उसकी पत्नी नहीं। ब्रूट्स, तुम मेरी सच्ची और सम्माननीय पत्नी हो, मुझे उतनी ही प्यारी जितनी सुर्ख बूंदे वह मेरे दुखी हृदय पर जाएं। पेज -24। पोर्टिया, यदि यह सत्य होता तो क्या मैं ये रहस्य जान पाता? मैं मानता हूँ कि मैं एक महिला हूँ, लेकिन विथल एक महिला जिसे लॉर्ड ब्रूट्स ने पत्नी बना लिया। मैं मानता हूँ कि मैं एक महिला हूँ, लेकिन विथल एक प्रतिष्ठित महिला, कीटो की बेटी। सोचो, मैं अपने लिंग से अधिक मजबूत नहीं हूँ। इतना पिता और इतना पति होना। मुझे अपनी सलाह बताओ, मैं उनका खुलासा नहीं करूँगा। मैंने अपनी दृढ़ता का पुख्ता प्रमाण दिया है। अपने आप को एक स्वैच्छिक घाव देना यहाँ जांघ में, क्या मैं इसे धैर्य के साथ सहन कर सकता हूँ? और मेरे पति के रहस्य नहीं। ब्रूट्स, हे देवताओं, मुझे इस नेक पत्नी के योग्य बनाओ। भीतर दस्तक दे रहा है हॉक। हॉक एक दस्तक देता है। पोर्टिया, थोड़ी देर अंदर जाओ और धीरे धीरे तेरा हृदय भाग लेगा मेरे दिल के राज। मैं अपनी सारी व्यस्तताएं तुम्हें ही सौंपूंगा, मेरी उदास भौहों की सारी विशेषताएं। मुझे जल्दी छोड़ो। पोर्टिया से बाहर निकले। लूसियस, वह दस्तक देने वाला कौन है? लूसियस को लिग्रियस के साथ पुनः दर्ज करे। लूसियस, वह एक बीमार आदमी है जो आपसे बात करेगा। ब्रूट्स, कायस लिगारियस, जिसके बारे में मेटिलस ने बात की थी। लड़के, एक तरफ खड़े हो जाओ। कायस लिगारियस, कैसे? लिग्रियस, कमजोर जबान से अच्छे कल का वाउसेफ। ब्रूट्स, हे, तुमने क्या समय चुना है? बहादुर कायस, रुमाल ओढ़ना। क्या आप बीमार नहीं होते? लिग्रियस, यदि ब्रूट्स का हाथ हो तो मैं बीमार नहीं हूँ। कोई भी शोषण सम्मान के नाम के योग्य है। ब्रूट्स, ऐसा कारनामा मेरे हाथ में है। लिगारियस, क्या आपके पास इसके बारे में सुनने के लिए स्वस्थ कान थे? लिग्रियस, उन सभी देवताओं के नाम जिनके आगे रोमन झुकते हैं, मैं यहाँ अपनी बीमारी त्यागता हूँ। रोम की आत्मा, बहादुर पुत्र, सम्माननीय वंश से उत्पन्न, तूने ओझा की भांति जादू किया है मेरी आहत आत्मा। अब मुझे दौड़ने को कहो और मैं असंभव वस्तुओं से प्रयत्न करूंगा। हाँ, उनमें से बेहतर बनो। क्या करना है?
ब्रूट्स, एक ऐसा काम जो बीमार लोगों को स्वस्थ कर देगा। लिग्रियस, लेकिन क्या कुछ संपूर्ण नहीं है जिन्हें हमें बीमार बनाना चाहिए? पेज -25। ब्रूट्स, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। यह क्या है? मेरे कयस, जैसे ही हम जा रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ये किससे किया जाना चाहिए? लिग्रियस, अपने पैर पर खड़े हो जाओ और नए हृदय से मैं आपका अनुसरण करता हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन ये पर्याप्त है। वह ब्रूट्स मुझे आगे ले जाता है। क्रूर, तो फिर मेरे पीछे आओ। कार्यकारी दृश्य 2। सीज़र का घर। गर्जन और बिजली। सीज़र में प्रवेश करें। उसके नाइट गाउन में सीज़र, आज रात न तो स्वर्ग और न ही पृथ्वी को शांति मिली। कैल्पर्निया नींद में 3 बार चिल्लाए, मदद करो। हो वे सीज़र की हत्या करते हैं। भीतर कौन है? एक नौकर दर्ज करे। नौकर, मेरे नाथ सीज़र, जाओ याजकों को बलिदान चढ़ाने को कहो और सफलता के बारे में उनकी राय मेरे पास लाएं। नौकर, मैं करूंगा मेरे प्रभु। बाहर निकलना। कैल्पर्निया में प्रवेश करें। कैल्पर्निया, आपका क्या मतलब है? सीज़र, क्या आपको लगता है कि आप आगे चलेंगे? आज आप अपने घर से बाहर न निकलें। सीज़र, सीज़र सामने आएगा। वे चीजें जिनसे मुझे खतरा है कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी पीठ पर जब वे देखेंगे सीज़र का चेहरा, वे गायब हो गए हैं। कैल्पर्निया, सीज़र, मैं कभी समारोहों में खड़ा नहीं हुआ, फिर भी अब वे मुझे डराते हैं। भीतर एक है, उन बातों के अलावा जो हमने सुनी और देखी हैं, घड़ी द्वारा देखे गए सबसे भयानक दृश्यों का वर्णन करता है। एक सिंहनी सड़कों पर रेंग रही है और कब्रों ने जम्हाए ली और अपने मुर्दे निकाल दिए। भयंकर उग्र योद्धा बादलों पर लड़े, रैंकों और स्क्वाड्रनों और युद्ध के सही रूप में, जिसने कैपिटल पर खून की बूंदें गिरा दी। युद्ध का शोर हवा में गूंज उठा, घोड़े हिनहिनाने लगे और मरते हुए आदमी कराहने लगे और भूत सड़कों पर चीखते चिल्लाते रहे। हे सीज़र, ये चीजें सभी उपयोग से परे हैं और मैं उनसे डरता हूँ। पेज -26। सीज़र, क्या टाला जा सकता है? शक्तिशाली देवताओं द्वारा किसका अंत निर्धारित किया गया है, तो भी सीज़र आगे निकलेगा। इन भविष्यवाणियों के लिए सीज़र के समान सामान्य रूप से दुनिया के लिए हैं। कैल्पर्निया, जब भिखारी मरते हैं तो कोई धूमकेतु दिखाई नहीं देता, स्वर्ग स्वयं राजकुमारों की मृत्यु को प्रकट करता है। सीज़र, काया अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, बहादुर केवल एक बार ही मरता है। उन सभी आश्चर्यों में से जो मैंने अभी तक सुने हैं, यह मुझे सबसे अजीब लगता है कि पुरुषों को डरना चाहिए। उस मृत्यु को देखकर एक आवश्यक अंत जब आएगा तब आऊंगा। नौकर, पुनः दर्ज करे। क्या कहते हैं शुभचिंतक? नौकर, वे नहीं चाहेंगे कि आप आज आगे बढ़ें। भेद की अंतड़ियों को बाहर निकालना। उन्हें जानवर के भीतर दिल नहीं मिला। सीज़र, देवता कायरता की लज्जा में ऐसा करते हैं। सीज़र, बिना दिल का जानवर होना चाहिए, अगर वह डर के मारे आज घर पर ही रहे। नहीं, सीज़र ऐसा नहीं करेगा। खतरे को अच्छी तरह से जानता है वह। सीज़र उससे भी अधिक खतरनाक है। हम एक ही दिन में बिछे हुए 2 शेर हैं, और मैं बड़ा और अधिक भयानक, और सीज़र आगे जाएगा। कैल्पर्निया, अफसोस मेरे प्रभु, आपकी बुद्धि आत्मविश्वास में खत्म हो जाती है। आज बाहर मत जाना। इसे मेरा भय कहो, यह आपको घर में रखता है, आपका नहीं। हम मार्क एंटनी को सीनेट हाउस भेजेंगे और वह कहेगा कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अपने घुटनों के बल इसमें प्रबल होने दो। सीज़र, मार्क एंटनी कहेंगे मैं ठीक नहीं हूँ और आपके मजाक के लिए मैं घर पर ही रहूंगा। डेसियस, दर्ज करे। ब्रूट्स, यहाँ डेसियस ब्रूट्स है, वह उन्हें ऐसा बताएगा। डेसियस ब्रूट्स, सीज़र, सबकी जय हो। शुभ कल योग्य सीज़र, मैं तुम्हें सीनेट हाउस तक ले जाने के लिए आया हूँ। सीज़र, और आप बहुत खुशी के समय में आए हैं। सेनेटरों को मेरा अभिवादन स्वीकार करने के लिए और उनसे कह दो कि मैं आज नहीं आऊंगा। नहीं कर सकता, झूठा है, और मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। झूठा, मैं आज नहीं आऊंगा, उन्हें ऐसा बताओ। डेसियस। पेज 27। कैल्पर्निया, कहो वह बीमार है। सीज़र, क्या सीज़र झूठ भेजेगा? क्या मैंने विजय की दिशा में अब तक अपना हाथ बढ़ाया है? ग्रेबल्स को सच बताने से डरना। डेसियस,
जाकर उन्हें बताओ कि सीजर नहीं आएगा। डेसियस ब्रूट्स, परम शक्तिशाली सीजर, मुझे कुछ कारण बताओ, ऐसा न हो कि मैं हो जाऊं जब मैं उन्हें ऐसा बताता हूँ तो वे हंसते हैं। सीजर, कारण मेरी इच्छा में है, मैं नहीं आऊंगा, ये सीनेट को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपकी निजी संतुष्टि के लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ कैल्पर्निया, मेरी पत्नी, मुझे घर पर रखती है। उसने आज रात सपना देखा कि उसने मेरी मूर्ति देखी, जो 100 टोंटियों वाले फव्वारे की तरह शुद्ध रक्त दौड़ा, और कई कामुक रोमन मुस्कुराते हुए आए, और उसमें अपने हाथ धोए, और इन्हें वह चेतावनियों और संकेतों के लिए लागू करती है, और आसन बुराइयां, और उसके घुटने पर मैंने विनती की है कि मैं आज घर पर ही रहूंगा। डेसियस ब्रूट्स, इस स्वप्न की व्याख्या बिल्कुल गलत है। यह एक निष्पक्ष और भाग्यशाली दृष्टिकोण था। आपकी मूर्ति कई पाइपों में खून बहा रही है, जिसमें बहुत सारे मुस्कुराते हुए रोमन स्नान करते थे। ये दर्शाता है कि महान रोम आपसे चूस जाएगा रक्त को पुनर्जीवित करना, और वह महान लोग दबाव डालेंगे टिंचर्स, दाग, अवशेष और संज्ञान के लिए। कैल्पर्निया के सपने का यही संकेत है, सीजर, और इस तरह आपने इसे अच्छे से समझाया है। डेसियस ब्रूट्स, मेरे पास है। जब आपने सुना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, और इसे अभी जाने। सीनेट ने निष्कर्ष निकाला है इस दिन को शक्तिशाली सीजर को ताज देने के लिए। यदि तुम उन्हें समाचार भेजोगे तो तुम न आओगे, उनका मन बदल सकता है। इसके अलावा यह एक नकली था, किसी के कहने के लिए प्रस्तुत किया जाना उपयुक्त है। अगली बार तक सीनेट को तोड़ो, जब सीजर की पत्नी बेहतर सपने लेकर आएगी। यदि सीजर छिप जाए तो क्या वे कानाफूसी न करेंगे? लो, सीजर डर गया। मुझे क्षमा करें सीजर, मेरे प्यारे प्यारे प्यार के लिए, हमारी कार्यवाही के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, और मेरे प्यार के लिए कारण जिम्मेदार है। पृष्ठ -28। सीजर, अब तुम्हारा डर कितना मूर्खतापूर्ण लगता है कैल्पर्निया। मुझे शर्म आती है कि मैं उनके सामने झुक गया। मुझे मेरा वस्त्र दो, क्योंकि मैं जाऊंगा। पब्लियस ब्रूट्स, लेगरस, मेटिलस, कास्का, ट्रेबोनियस और सिन्ना दर्ज करें और देखो पब्लियस मुझे लेने कहाँ आया है। पब्लियस, शुभ कल सीजर। सीजर, आपका स्वागत है। पब्लियस, क्या ब्रूट्स, क्या तुम भी इतनी जल्दी उत्तेजित हो गए? शुभ कल कास्का, कयस लेगारियस। सीजर, कभी भी आपका इतना शत्रु नहीं था, उसी पीड़ा के समान जिसने तुम्हें दुबला कर दिया है। 3 बजे किया है। ब्रूट्स, सीजर, 8 बज गए। सीजर, मैं आपकी पीड़ा और शिष्टाचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। एंटनी, दर्ज करे देखना। एंटनी, जो लंबी रातें मनाता है फिर भी ऊपर है। शुभ कल एंटनी। एंटनी, तो सबसे महान सीजर के लिए। सीजर, उन्हें भीतर तैयार करने के लिए कहें। इस प्रकार प्रतीक्षा किए जाने के लिए मैं दोषी हूँ। अब सिन्ना, अब मेटिलस, क्या ट्रेबोनियस, मेरे पास आपके लिए 1 घंटे की बातचीत है। याद रखें कि आप आज मुझे फोन करते हैं। मेरे निकट रहो कि मैं तुम्हें स्मरण रखूं। ट्रेबोनियस, सीजर, मैं करूंगा अलग, और मैं इतना करीब रहूंगा। आपके सबसे अच्छे दोस्त चाहेंगे कि मैं आगे भी होता। सीजर, अच्छे मित्रों, अंदर आओ और मेरे साथ शराब का स्वाद लो, और हम दोस्तों की तरह सीधे साथ चलेंगे। ब्रूट्स, एक तरफ की हर पसंद एक जैसी नहीं होती। हे सीजर, ब्रूट्स का हृदय इस पर विचार करने के लिए उत्सुक है। कार्यकारी पेज -29। सीन -3। कैपिटल के पास एक सड़क। एक पेपर पढ़ते हुए आर्टेमिडोरस दर्ज करें। आर्टेमिडोरस, सीजर, ब्रूट्स से सावधान रहें। कैसियस का ध्यान रखें। कैस्का के पास मत आओ। सिन्ना पर नजर रखें। भरोसा नहीं। ट्रेबोनियस, अच्छी तरह से चिन्हित करें। मेटिलस सिम्बर, डेसियस ब्रूट्स तुमसे प्यार नहीं करता, तुमने कयस लिग्रियस के साथ अन्याय किया है। इन सभी मनुष्यों में एक ही मन है, और वह है सीजर के खिलाफ झुक गया। यदि तू अमर नहीं है, अपने बारे में देखें, सुरक्षा साजिश को रास्ता देती है। शक्तिशाली देवता आपकी रक्षा करते हैं। तेरा प्रेमी आर्टेमिडोरस। सीजर के गुजरने तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा, और एक प्रेमी के रूप में मैं उसे ये दूंगा। मेरा हृदय दुखी है कि सद्गुण जीवित नहीं रह सकता, अनुकरण के दांतों से बाहर। हे सीजर, यदि तू इसे पढ़ेगा तो तू जीवित रहेगा।
यदि नहीं तो गद्दारों के साथ नियति षड्यंत्र रचती है। बाहर निकलना दृश्य -4। उसी गली का दूसरा भाग, ब्रूट्स के घर के सामने। पोर्टिया और लूसियस दर्ज करे। पोर्टिया, मैं प्रिय लड़के सीनेट हाउस की ओर दौड़ता हूँ, मुझे उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि प्राप्त करने के लिए। रुकिन, तुम चले गए, तुम क्यों रहते हो? लूसियस, मेरा काम जानने के लिए महोदया। पोर्टिया, मैं तुम्हें वहाँ पाता, और यहाँ भी। क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें वहाँ क्या करना चाहिए? हे दृढ़ता, मेरी तरफ से मजबूत बनो, मेरे दिल और जीभ के बीच एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दो। मेरे पास एक पुरुष का दिमाग है, लेकिन एक महिला की ताकत है। महिलाओं के लिए सलाह मानना कितना कठिन है। क्या आप अभी तक यहाँ हैं? लूसियस, मैडम, मुझे क्या करना चाहिए? कैपिटल की ओर भागे, और कुछ नहीं। और इसलिए आपके पास लौटे, और कुछ नहीं। पोर्टिया, हाँ, मुझे सूचित करो। लड़के, यदि तुम्हारा स्वामी ठीक है, क्योंकि वह बीमार होकर निकला था। और ध्यान रखना, सीज़र क्या करता है, प्रेमी उस पर क्या दबाव डालते हैं। हॉक, लड़का, वह कौन सा शोर है? लूसियस, मुझे कोई सुनाई नहीं दे रहा महोदया। पोर्टिया, पृथ्वी, अच्छा सुनो, मैंने एक हलचल भरी अफवाह सुनी, एक झगड़े की तरह, और हवा इसे कैपिटल से लाती है। लूसियस, शांत महोदया, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। भविष्यवक्ता दर्ज करे पेज -30। पोर्टिया, इधर आओ साथी, तुम किस रास्ते पर हो? भविष्यवक्ता, मेरे अपने घर पर। अच्छी महिला। पोर्टिया, क्या बजे नहीं है? भविष्यवक्ता, लगभग 9वें घंटे। महिला। पोर्टिया, क्या सीज़र अभी तक कैपिटल में गया है? भविष्यवक्ता, महोदया, अभी नहीं, मैं अपना पक्ष रखने जा रहा हूँ, उसे कैपिटल तक जाते हुए देखने के लिए। पोर्टिया, क्या आपके पास सीज़र के लिए कोई मुकदमा नहीं है? भविष्यवक्ता, वह मेरे पास है। महिला, यदि यह सीज़र को प्रसन्न करेगा, सीज़र के प्रति इतना अच्छा होना कि वह मेरी बात सुने, मैं उससे खुद से दोस्ती करने के लिए विनती करूंगा। पोर्टिया, क्यों? क्या तुम्हें पता है कि उसके प्रति कोई हानि का इरादा है? भविष्यवक्ता, मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे इतना डर है कि इसकी संभावना बढ़ सकती है। आपका कल शुभ हो। यहाँ सड़क संकरी है, भीड़ जो सीज़र का पीछा करती है, सेनेटरों की, प्रशंसा करने वालों की, आम चाहने वालों की, एक कमजोर आदमी को लगभग मौत के घाट उतार देंगे। मैं मुझे एक अधिक शून्य स्थान पर ले जाऊंगा, और वहां महान सीज़र के आते ही उससे बात करें। बाहर निकलना। पोर्टिया, मुझे अंदर जाना चाहिए। अरे, कितनी कमजोर चीज है, नारी का हृदय है। हे ब्रूट्स, आपके उद्यम में स्वर्ग आपको गति प्रदान करता है। जरूर, लड़के ने मुझे सुना। ब्रूट्स के पास एक सूट है, वह सीज़र अनुदान नहीं देगा। ओह, मैं बेहोश हो जाता हूँ। भागो लूसियस, और मुझे मेरे प्रभु के पास सौंप दो। कहो मैं खुश हूँ, फिर से मेरे पास आओ, और जो कुछ वह तुझसे कहता है वह मुझे बता देना। अलग अलग निष्पादित करें। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।